السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 30 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 190 سے 200 تک۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو مستدرک حاکم میں آتا ہے قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ حکم اس پس منظر میں نازل ہوا کہ ہجرت کے 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب مکہ معظمہ قریب آیا تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے آپ کو اور صحابہ کو سب کو روک لیا اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر کار مکہ کے مشرکین نے 10 سال کے لیے چند جو ہے شرائط، یعنی کہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، اور اس بنیاد پر صلح کر لی کہ ان شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور آئندہ سال جب عمرہ کے لیے آئیں گے تو صرف 3 دن ہی مکہ میں ٹھہریں گے۔ جس مہینے میں یہ معاہدہ ہوا تھا وہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی تھا۔ پھر جب اگلے سال ذی القعدہ ہی کے مہینے میں عمرہ کی قضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے تو اس زمانے میں 4 مہینوں میں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں قتال اور جنگ کرنا منع تھا، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی القعدہ بھی تھا۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو خدشہ ہوا کہ ممکن ہے کہ مکہ کے مشرکین صلح کی شرطوں کی خلاف ورزی کریں گے اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیں گے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم کو بھی جنگ کرنا پڑے گا، اور ذی القعدہ کا مہینہ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں ہم جوابی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ تم سے جنگ کرے تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو جوابی کارروائی کے طور پر دفاعی جنگ کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم خود بھی جنگ کا آغاز مت کرو، لیکن ہاں اگر جب تم سے کوئی جنگ لڑتا ہے نا تو تم بھی اس سے جنگ لڑو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقاتلو، یعنی جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اگر تم ٹھیک ہے جنگ کرتا ہے اگر تم سے تو تم بھی جنگ کرو، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے۔ پرسنلی ذاتی جو انسان اپنے جو ہے نا پورا ایک دیش دوسرے دیش کو جو قبضہ کر لیتا ہے نا، دولت کی لالچ میں، خزانوں کی لالچ میں، مال متا کی لالچ میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی جنگ کس لیے لڑنی ہے؟ صرف اور صرف خالص اللہ کی راہ کے لیے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام اونچا ہو جائے، کلمہ توحید نافذ ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیت ایسی آیت ہے جس میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتل کرتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں سے جان بوجھ کر جنگ لڑتے رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو جنگ سے روکا ہوا تھا۔ یعنی جب سارے مسلمان مکہ میں تھے، جب ان کی مکی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے نہیں کہا، لیکن جب مسلمان مدینہ آگے چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کو تقویت پہنچ گئی، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب تم لوگ جنگ کرو۔ مکہ میں تو اتنے زیادہ ان پر ظلم اور ستم جو ہے ڈھائے گئے، اور بہت سارے ہی ظلم ان پہ ڈھائے گئے تھے مکی زندگی میں، یہاں تک کہ حضرت جو بلال ہیں ان کو اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو ان پر تعذیب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کا مالک امیہ بن خلف شدید دھوپ میں لٹا کر بھاری پتھر ان پر رکھ دیتا تھا،
जुम्बश ना कर सके, यानी कि वो हिल भी ना सके, और कहता था जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का इनकार करके लात मनात और उज़्ज़ा की इबादत नहीं करोगे, इसी तरह पड़े रहोगे। जवाब में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अहद अहद फरमाते थे। इसी जुर्म में कुफ्फार उन्हें रस्सियों से बांधकर मक्का की गलियों में घसीटते, कभी तपती रेत पर औंधा लिटाकर उन पर पत्थर का ढेर लगा देते और कहते, कहो मेरा रब है लात और उज़्ज़ा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब में सिर्फ एक ही बात फरमाते थे, अहद और अहद, यानी तौहीद और तौहीद ना। अहद के माने क्या पढ़े थे हम लोग ने कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही क्या है, वहदहु ला शरीक है। तो ये बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पे जुल्म और सितम ढाए गए। इसी तरह से हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी और ज़ईफ थी, इसके बावजूद कुफार उनके ऊपर लोहे की जर्रा पहनाकर तपती जमीन पर लिटा देते थे और पास ही खड़े हुए कह कहे लगाते थे और कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन का मजा चखो। उनके शौहर हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और बेटे हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ को आग से दागा जाता था, पानी में गौते देते जाते थे, यानी कि पानी में डिबो डुबो कर उनको गौते दिए जाते थे, लोहे की जर्रे पहना कर जलती रेत पर लिटा दिया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार का जुल्म और गरीबुद्दियार आले यासिर का सब्र से बात देखा तो फरमाया, फसबिरु या आले यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ए आले यासिर सब्र करना, तुम्हारे साथ जन्नत का वायदा है। एक रोज बूढ़ी सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा दिन भर की सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद जब शाम को घर लौटी तो बदबख्त अबू जहल ने उन्हें गालियां दी और गालियां देनी शुरू कर दी, और गुस्सा उसका इतना ठंडा भी नहीं हुआ कि उसको अपना जो है बर्छा उसने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को दे मारा, और इसी वक्त वो उनकी वफात हो गई और वो खत्म हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह से हजरत खब्बाब बिन आरत रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में एक उम्मुन अनमार बिन सबा अल खजाइया के गुलाम थे। इस्लाम लाने के जुर्म में कुफार उनके कपड़े उतरवा कर दहकते हुए अंगारों पर लिटा देते और सीने पर भारी पत्थर की सिल रख देते, और कभी कोई आदमी सीने पर चढ़ कर बैठ जाता कि करवट तक न बदल सकते। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म अंगारों पर जलता रहता, हत्ता कि खून और पीप जिस्म से रिस रिस कर अंगारों को ठंडा कर देती। कभी उम्मिन अनमार, यानी जो उसकी मालकिन थी ना हजरत खब्बाब बिन आरिफ की, वो हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु को लोहे की जर्रे पहनाकर धूप में लिटा देती, और कभी गर्म लोहे से आप रज़ी अल्लाह अन्हु का सर दागती। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलसल कफ़ार के इस बहिमाना जुल्म का निशाना बने रहे, हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। तो ऐसे ही नहीं, ऐसे कई वाक़यात हैं जो सीरत में भरे हुए हैं कि सहाबा पे इतना जुल्म तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तौहीद और मुसलमान हो गए थे। उन्होंने तौहीद पर डट गए और वो मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए थे, इस्लाम कबूल कर लिया था। और इससे पहले जो उनके जो कुफ़ार और मुशरिकीन जो बुत परस्तिश थी, उस सब को छोड़ के उन्होंने इस्लाम पर डट गए, इस्तिक़ामत की, और मुसलमान के जो है इस पर डट गए। इस वजह से, इस हसद और जलन और बुग़्ज़ की वजह से जितने भी मुशरिकीन मक्का थे, मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन्होंने बहुत बार और कई बार तकलीफें पहुंचाई। कई बार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानलेवा हमले तक की किए गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने भी मुसलमान हैं उन सबको बाइकॉट का भी साल का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ के भी सफर में गए तो भी मुशरिकीन मक्का की चाल थी, और उन्होंने वहां पे भी ऐसी ही जो है उनके बारे में बात फैला दी थी। तैफ वालों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। कई नहीं, ऐसे कई वाकयात हैं जो भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि जब मुसलमानों ने सब्र किया, मक्की जिंदगी थी ना, क्योंकि वहां पे मुसलमान थोड़े थे, कम थे, ताकत नहीं थी, उनके कुव्वत भी नहीं थी ना, तो उनके पास जो है जंग के लिए ना चीजें थी, सामान मुहैया थे जिससे जंग की जाती थी, ना तलवारें थी उनके पास, ना माल थी, ना मता थी। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने मक्की जिंदगी में 13 साल तक उनको सब्र की तलकीन की। लेकिन जब मदीने चले गए और अपनी छोटी सी रियासत कायम हुई, तब अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, वला तातदू, लेकिन तुम ज्यादती मत करना। तुम लड़ो अल्लाह की राह में, और जो है जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन तुम ज्यादती मत करना। जाति क्या है? तो जाति से मना किया गया अल्लाह तबारक तआला ने, जिसका मतलब ये है कि तुम मुसला मत करना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल भी नहीं करना जिनका जंग में हिस्सा ना हो। इस तरह दरख्त वगैरह को भी जला देना या जानवरों को बगैर मसलहत मार डालना, ये सब जाति के काम है जिनसे तुमको बचना है। यानी मुसलमानों को इन तमाम कामों से बचना है और उनको अदू यानी जाति से बचना है, क्योंकि अल्लाह ताला ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला जाति करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। मुसलमानों को कहा गया कि तुम जाति नहीं करना, और मूसला
मूसला दरअसल क्या है? मूसला ये है कि जब जंग की जाती थी और मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का कई बार मूसला किया। जंग अहद में हिंदा ने जो है हमजा रज़ी ताला अन्हु यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनका मूसला कर दिया। मूसला में ये होता था कि जो एक इंसान मर चुका है उसको मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया गया जंग की हालत में। अब उसकी बॉडी के साथ उसको चीर-फाड़ करके उसके इंटरनल पार्ट्स का हार पहन रहे हैं और फिर उसके जो इंटरनल पार्ट्स से दिल, गुर्दा, कलेजी उछाले जाते थे हवा में, इसकी तौहीन की जाती थी। तो इसे मूसला कहते थे। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इससे मुसलमानों को रोक दिया है। और जब जंग अहद हुई थी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा का हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मूसला किया गया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गम पहुँचा था। अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम जो है ये सब ज़्यादती के काम ना करना। ठीक है, तुमको जंग की इजाज़त तो दी जा रही, लेकिन हुदूद के अंदर और हदों के अंदर रह के ही तुम्हें जंग करना है। वो भी जंग क्या है? जंग तुम्हें अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए नहीं करना है, अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने ज़मीन को और अपने ख़ानदान को, अपने कबीले को, अपने जो है ना, इसको नहीं बुलंद करना है, इसकी लालच में नहीं करना है। जंग तो लड़ने का मकसद क्या है? अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, यानी कुफ्र और शिर्क को ख़त्म करके वहाँ पर अल्लाह के कलमे को बुलंद कर दिया जाए। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग करना है तुमको। अपने पर्सनली फ़ायदों और अपने पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए जो तुम पर ज़ुल्म किया मुशरिकीन मक्का में, तुम्हें उनका बदला नहीं लेना है। तुमको अपने बदले नहीं लेने हैं। तुम्हें तो सिर्फ़ जंग इसलिए करना है कि बस अल्लाह के रास्ते में तुम्हें जंग करना है। आयत 191 वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ित्नह अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामि हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलू कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। और सुनो, फ़ितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है और मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई ना करो जब तक ये खुद तुमसे ना लड़े। अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी उन्हें मार डालो। काफिरों का बदला ही यही है। तो मक्का में जो मुसलमान थे वो कमजोर थे और बहुत थोड़े से थे, इसलिए कुफार से किताल यानी कि जंग मना थी। लेकिन जब हिजरत हुई, हिजरत के बाद मुसलमानों को थोड़ी सी ताकत और कुव्वत मिली, एक रियासत छोटी सी कायम हुई। अब अल्लाह तबारक तआला ने सबको मुसलमानों को जिहाद की इजाजत दी है। इब्तिदा में आप सिर्फ उन्हीं से लड़ते जो मुसलमान से लड़ने में पहल करते थे। इसके बाद इसमें मजीद वुसाअत कर दी और मुसलमानों ने हस्ब ज़रूरत कुफ़ार के इलाकों में भी जाकर जिहाद कर दिया। कुरान करीम ने एतदे यानी ज़ाती करने से मना फरमाया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्करों को ताकीद फरमाते थे कि ख़यानत, बदअहदी, मूसला ना करना और ना बच्चों को, औरतों को और जो जो मरीज़ हैं, बीमार हैं और जो है जो जैसे कि जो पादरी जैसे होते हैं या एक इबादत गुज़ार जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज में जैसे पंडित होते हैं, ब्रह्मचारी, इस तरह के लोगों को कत्ल भी नहीं करना है। इसी तरह दरख्तों के जलाने और हैवानात को बगैर किसी मसलहत के यानी कि हैवानात जो जानवर होते हैं, मसलहत के मानने से भी मना फरमाया है। ये सारे अहकामात दिए थे मुसलमानों को, यानी कि इसके साथ जंग करना है। ये काम करना भी है और जंग भी करना है, यानी कि आपसे जो लड़ता है सिर्फ आपको उसको मारना है, बिला फिजूल बगैर किसी उज्र के जो ये तमाम काम करने से रोका गया है। और जहाँ भी पाओ का यानी कि हैसु सक़िफ़्तुमूहुम यानी कि जहाँ भी पाओ का मतलब ये है कि उनको कत्ल करने की कुदरत तुम्हें हासिल हो जाए। यानी जिस तरह कुफ़ार ने तुम्हें मक्का से निकाला था ना, इसी तरह तुम भी उन्हें मक्का से निकाल कर बाहर करो। चुनांचे फ़तेह मक्का के बाद जब लोग मुसलमान नहीं हुए तो उन्हें मुद्दत मुआहदा ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया गया था। फ़ितना फ़ितना से मुराद क्या है? फ़ितना से मुराद यहाँ कुफ़्र और शिर्क है। तो फ़ितना फ़ा ता नून से है। फितना क्या है? फितना ऐसे हालात हैं जिनमें इंसान खुदाए वाहिद की बंदगी ना कर सके और इसे गलत कामों पर मजबूर किया जाए, वो हराम खोरी पर मजबूर हो गया हो। ये सारी हालात फितना है। तो फितना से मुराद यही है, जिस तरह से अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि जो बिलाल थे, अम्मार बिन यासिर थे, सुमैया रज़ी अल्लाह इन सबको कुफार मक्का ने इतना ज्यादा जुल्म किया। और किस वजह से? क्योंकि वो लोग तौहीद पर थे और वो कहते थे कि तुम तौहीद छोड़ो और हमारे बुतों की परस्तिश करो। तो ये जो काम था ये फितना कहलाता है। यानी ऐसे हालात जिनमें इंसान खुदाई वाहिद यानी कि एक अल्लाह की बंदगी ना कर सके और उनको मजबूर भी किया जाए और और उनको मजबूर करके गलत कामों पर उकसाया जाए और वो इस पर उनको जुल्म भी किया जाता था ना, जुल्म भी करते थे कुफारे मक्का। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि फितना जो है खत्म करो। अशद्दु, यहाँ अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना तो ज्यादा शदीद है कत्ल से। ठीक है, तुम्हें जंग की इजाजत दी गई तो जंग तो ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत भारी चीज है, लेकिन फितना फितना तो उससे भी ज्यादा शदीद है। तो फितना इससे रोका गया है।
تو فتنہ اگر کوئی کرے گا اور اگر کوئی مسلمانوں کو ان کا دین چھوڑنے پہ مجبور کرے اور کہے کہ تم لات منات عزا کی جو ہے تم کیا کرو، ان کی پوجا پاٹ کرو، ان کو مانو اور ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جب نہیں مانا تو انہوں نے قتل کر دیا، اتنا ظلم ڈھائے کہ آج ہسٹری بھری پڑی ہے۔ تو فتنہ تو سب سے زیادہ شدید ہے قتل سے۔ تو من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا نا، اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے باہر کر دو۔ اور والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ تو زیادہ شدید ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس تم مت قتل کرنا، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے خود قتل کرے۔ فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اور اگر تم سے وہ وہاں پر بھی جنگ کرے تو تم بھی ان سے جنگ کرو، یعنی کہ اپنے سیلف ڈیفenس میں اگر تم مسجد حرام کے پاس، پہلی چیز تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا ہے، مسجد حرام یعنی حرمت والا گھر ہے، حرم شریف ہے، اور حرمت والے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ سے منع کیا ہے۔ لیکن جب کوئی جو ہے کسی بے گناہ شخص پر جو ہے قتل کرے گا یا جنگ کرے گا، تو پھر سیلف ڈیفenس میں تو سامنے والا تو ایسا نہیں کر سکتا نا کہ آؤ ہمیں مار دو، ہم مرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اپنے سیلف ڈیفenس میں انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی حفاظت میں پھر وہ جوابی کاروائی کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے، فرما رہے ہیں کہ تم نا مسجد حرام کے پاس مت لڑنا یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، اگر وہ تم سے وہاں پر بھی لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، اور اسی طرح جزا ہے کافروں کی، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ تو اپنے سیلف ڈیفenس میں وہاں پر انسان پھر جو ہے جواب دے سکتا ہے۔ آیت 192، فَإِنِ انْتَحَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ اپنا جو ہے جو مشرکانہ رویہ ہے یہ چھوڑ دے اور جنگ سے رک جائیں، جنگ سے باز آ جائے، تو تم بھی کیا کرو، تم بھی رک جاؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ آیت 193، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرعی طور پر جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیے کے ذریعے اسلامی حکومت کے قانون کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن عرب کے خطے کا حکم اس سے الگ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے خود سنی۔ ایسے لوگوں اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تو انہیں جو ہے نا پورے ساروجنک طور پر عذاب، یعنی کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں ہلاک کر دیتے تھے، یعنی کہ جب پچھلے انبیاء جب آئے اور وہ پیغامات لائے اور قوم نہیں مانتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے کے پورے جو قوم ہے اور پورے جتنے بھی سارے کے سارے لوگ تھے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عام عذاب تو روک دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا، اور عذاب تو روکے، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ عرب کے خطے میں کوئی بھی کافر جو ہے مستقل جیسے بطور ایک شہری جو ایک ناگرک ہوتا ہے اس کی حیثیت سے وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں اس کے لیے 3 راستے ہیں، یا تو اسلام لائے، یا عرب کے علاقے سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ تو 3 ان کو یہ جو ہے آپشن دیے گئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ رک جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ تم ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے، فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر یہ رک جاتے ہیں تو تم بھی رک جاؤ، تم بھی ان سے کیا کرو، بالکل بھی جنگ نہ کرو۔ وہ اگر سرنڈر کر دیتے تو ٹھیک ہے، تم بھی ان کو مت قتل کرو، مت مارو، ان کو چھوڑ دو۔ آیت 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمت عدلے بدلے کی ہے، جو تم پر ذاتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل ذاتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو ہے یہی پس منظر ہے کہ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ جانے نہیں دیا، مکہ حرمین شریف کے اندر انٹر نہیں کرنے دیا، اور یہ معاہدہ کیا اور یہ کانٹریکٹ کیے، بہت ساری شرطیں تھیں، ان شرطوں میں سے یہ بھی ایک شرط تھی کہ وہ اس بار ایسے ہی اسی حالت میں وہ لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے
اور جو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ میں آئیں گے، اور یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکے تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلا ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھانا۔ یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے دراصل ہیں کون کون سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، تو حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ 4 ہیں، پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں عربوں کا بہت زیادہ احترام ہوتا تھا، ان میں لڑائی جھگڑا اور جو ہے قتال وغیرہ سب کچھ ان کیا منع تھا۔ تو اس میں اب یہ تھا کہ اگر جانا ہو جائے اور اگر وہ لوگ پہل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو تم بھی اس مہینے میں جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ اگر تم سے کوئی لڑے گا تو تم پر اگر کوئی زیادتی کرے، تم سے کوئی جھگڑا کرے، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرا تو تم بھی ان کی ہی طرح، یعنی کہ جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے بس اتنا ہی کرنا، اس سے زیادتی نہیں۔ اور اللہ کا ڈر رکھتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی مراد اس سے جہاد ہے نا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا کمزور تھا نا اسلام، اور اتنی زیادہ قوتیں نہیں تھی جو آج اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار جو سعودی عرب ہے، اس وقت تو بہت غریب تھا، مسلمان بہت غریب تھے، اس وقت کیا ضرورت تھی، سب لوگ خرچ کریں۔ تو یہاں پہ وَأَنفِقُوا جو الفاظ آیا ہے نفقہ سے ہے، نون فا قاف، اس کی معنی ہوتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو، اپنی جان بھی لگاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنا سب کچھ لگاؤ، خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنا ہے، دینا ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ولا تلکو، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں دینا ہے کہ خود تم جو ہے اپنے آپ کو کنگالی میں لے جا کے ڈبو دو، اتنا دینا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ اپنی جان ہے۔ تو اگر مال اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں لگائے، ہے نا۔ لیکن اس وقت تو صحابہ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا۔ لیکن آج اگر آج کے دور میں دیکھیں گے تو کیا ہے، ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا، جہاد میں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ایسے جو دین ادارے ہیں، جو ایسے کام ہو رہے ہیں جہاں پہ دین کی سربلندی ہو رہی ہے، مدارس ہے، مساجد ہے، جہاں پہ لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ پیسہ لگانے سے دین کی بلندی ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اتنا بھی نہیں خرچ کر دینا ہے کہ اپنے آپ کو انسان ہلاکت میں ڈال دینا، سب کچھ دے دے اور خود انسان روڈ پہ آ جائے، ایسا بھی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اتنا دے کہ انسان اپنی زندگی بھی صحیح سے گزار سکے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو جب جنگ تبوک کا موقع آیا تھا انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ تم کس کو چھوڑ کر آئے ہو، گھر پہ کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے تو اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنا سارا کا سارا مال لے آئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا آدھا سامان لا کے انہوں نے جنگ تبوک میں دے دیا تھا۔ جنگ تبوک بہت شدید جنگ تھی اور بہت مشقت والی تھی، اور اس پہ سب کے لیے تھا کہ جنگ میں کچھ نہ کچھ انسان خرچ کرے۔ تو بہت سارے ایسے حالات اور سچویشن گزری ہیں سیرت میں، جس سے پتہ چلتا ہے جب انسان اس کی طرف آتا ہے سیرت کی طرف، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ٹھیک ہے خرچ کرنا ہے، اور لیکن انسان کو جو ہے نا تنگی بھی نہیں کرنی ہے، بخیلی بھی نہیں کرنی ہے۔ اب سامنے سچویشن ہے کہ دینا ہے اور لیکن انسان بخیلی بھی کر رہا ہے، کیونکہ بخل انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے نا، کہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، جو اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ پھر دوسرا ہے کہ جو علم جو اس نے پڑھایا لوگوں کو، دین کے خاطر علم حاصل کیا اور اس نے لوگوں کو پڑھایا۔ پھر تیسرا ہے نیک اولاد۔ تو پہلا تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس اتنا سارا سب کچھ ہوتا ہے نا، مال متاع اور دولت اور لاکھوں کی مکان اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن انسان خرچ کچھ نہیں کر پاتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو،
वअनफिकू, खर्च करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने एक बेहतरीन जो है बताया भी है कि इतना भी मत खर्च करो कि इंसान अपने आप को तुम लोग हलाकत में डाल दो। और सुलूक और एहसान करो और अच्छा सुलूक करो और अखलाक मतलब कि आसान तरीके से खर्च करो और लोगों से अच्छे सुलूक भी करो। ऐसा भी नहीं करना कि इंसान दे दे और देने के बाद भी ना क्या करता है, ताने देता है ना, लोगों को बातें सुनाता है और बुरे बुरे अल्फाज कहता है। आसिनो आसान तरीके से देना, एक हाथ से देना दूसरे हाथ को पता भी ना चले। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों को, जो एहसन तरीके से काम करते हैं, जो आसान तरीके से अपने कामों को सर अंजाम देते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे मोहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। मोहसिनीन यानी कि अहसन करने वाला, एहसान करने वाला, किसी को उसके हक से ज्यादा देने वाले, वो जो लोग होते हैं एहसान करने वाले होते हैं। अल्लाह तबारक ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो जंग जब होती है तो फिर जंग ना सिर्फ और सिर्फ इंसानों से नहीं हो सकती है। जंग के लिए इंसान को बहुत सारे जो है ना चीज़ों की ज़रूरत होती थी। आप सोचिए कि उस वक़्त की जो जंगें होती थी ना, उसमें जैसे लोगों को घोड़े चाहिए होते थे और ऊँट चाहिए होते थे और तलवारें चाहिए होती थी, और उन सारे जो 1-2 हज़ार या 3 हज़ार जो लोग होते थे, वो लोग तो सब लोग खाली हाथे पैदल है, उनके खाने-पीने, रहने-सहने का सब कुछ इंतज़ाम भी चाहिए होता था ना। 1-1 महीना, 2-2 महीना जब जंग पे जाते थे, तो 1 महीना, डेढ़ महीने के लिए जंग के लिए खाने-पीने और जो है सबके खुराक का भी इंतज़ाम की ज़रूरत होती थी। सारे इंतज़ाम से सब चलते थे। फिर तलवारों की भी ज़रूरत होती थी, अपने जो पहनावे होते हैं ना, जो जंगी लिबास होते थे उसकी भी, जिरह की भी ज़रूरत होती थी, जंगी लिबास की भी ज़रूरत होती थी, तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो उन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम क्या करो, खर्च करो। और आज भी ये सब हम सब के लिए हुक्म आम है। तो अल्लाह तबारक तआला की राह में सबको खर्च करना है, हम सबको भी खर्च करना है, और ये हमारे लिए क्या है, सदका जारिया होता है। अगर इंसान अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो ये अल्लाह की राह में देना क्या है, इंसान के लिए सदका जारिया है। सारी चीज़ें, इंसान जब फौत हो जाता है हर चीज़ मुनक़ता हो जाता है, सारे नेक अमाल इंसान के रोक दिए जाते हैं, सब चीज़ मुनक़ते हो जाती है ना। एक इंसान नमाज रोज़ा हज कर रहा है, ज़िंदगी में अपना ज़िक्र कर रहा है, लेकिन सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सब अमाल, नेक अमाल रुक जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के ना। फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने वाला, जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया, और फिर नेक औलाद उसने कोई छोड़ दी, और फिर तीसरा क्या है, इल्म, जो उसने पढ़ा और पढ़ाया और हासिल किया। आयत 196, हज और उम्रा। वअतिम्मु वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसरा मिनल हदय्य वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदय महिल्ला फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ फ़िल उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसरा मिनल हदय्य फ़मन लम यजिद फ़सियाम सलसा अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरा कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलु हादिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डालो, और अपने सर ना मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले, तो उसमें उस पर फिदिया है। ख्वाह रोजे रख ले, ख्वाह सदका दे दे, ख्वाह कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तो करे, बस इसे जो कुर्बानी मैसर हो इसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो तो वो 3 रोजे रखे जो हज के दिनों में रख ले, और साथ वापसी में, ये पूरे 10 होंगे। ये हुक्म है उनके लिए जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगों, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, सख्त अजाब वाला है। तो यहाँ पे खास हुक्म है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी बताया भी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सुलह हुदैबिया यानी कि हुदैबिया के मकाम पर गए थे उम्रा करने, लेकिन उनको वहां पे लोगों ने रोक लिया, मुशरिकीन मक्का ने। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। मतलब ये है कि जब कोई शख्स हज या उम्रे का एहराम बांध ले, तो जब तक हज या उम्रे के अमाल पूरे ना हो जाए तो एहराम खोलना जायज नहीं है। अलबत्ता किसी को ऐसी मजबूरी पेश आ सकती है कि एहराम बांधने के बाद मक्का मुकर्रमा तक पहुंचना मुमकिन ही ना रहे, या चुनाचे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत भी पेश आई थी ना कि आप और आपके सहाबा को उम्रा का एहराम बांध कर रवाना हुए, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर मक्का के मुशरिकीनों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, रोक दिया। इसी मौके पर ये आयतें नाजिल हुई, और इनमें ऐसी सूरत हाल का भी हल बताया गया है, सॉल्यूशन बताया गया है कि ऐसी सूरत में कुर्बानी करके एहराम खोला जा सकता है। ये कुर्बानी हरम की हदों में होनी चाहिए, जैसा कि अगले जुमले में ही आ रहा है। और अपने सर उस वक्त तक ना मुड़वाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। और उसके बाद जिस हज या उम्रे का एहराम बांधा था उसकी कज़ा भी जरूरी है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्रे की कज़ा अगले साल फरमाई थी। तो ये
एक अहकाम है। कभी कभी हो जाता है इंसान निकला एहराम बांध कर घर से, लेकिन कभी होता है कि फ्लाइट मिस हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हो गई कि इंसान उम्रे का एहराम बांध के निकला या हज का एहराम बांध के निकला, लेकिन वो पूरा नहीं कर सका, तो फिर उसकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या करना है। लेकिन करना यही है कि हर हालत में इंसान पूरा करे, अधूरा ना छोड़े। अगर हज उम्रे का एहराम बांधा है तो फिर उसे क्या करे, पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया व अतिम्मु, और पूरा करो। कोई भी काम जब इंसान अल्लाह के लिए शुरू करता है तो उसको पूरा करे, चाहे वो कोई भी दीनी जो भी काम है, इबादत के काम है, उसको कंप्लीट करे, बीच में नहीं छोड़ना है, अधूरे में नहीं छोड़ना है। लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि इंसान, इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर वो कर नहीं सकता है, वो पूरा नहीं कर सकता है। फाइन और सिर तुम, अगर तुम घेर लिए जाओ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कंडीशन हुई थी ना कि लोगों ने, मक्का के मुशरिकीन ने उनको घेर लिया था, उनको जाने ही नहीं दिया, एंटर नहीं करने दिया, तो फिर क्या किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बानी वही की और फिर अपना एहराम खोल दिया, और जितने भी सहाबा थे और सबने भी यही काम किया, फिर सारे के सारे वो लोग हुदैबिया के मकाम से मदीने की तरफ लौट गए। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, हाँ अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो जाए उसे कर डालो। तो जो कुर्बानी मैसर हो जाए तो कर लो, यानी हज या उम्रे का एहराम बांध लो, तो फिर इसका पूरा करना भी जरूरी है, चाहे नफली हज या उम्रा हो। लेकिन अगर रास्ते में दुश्मन या शरीर बीमारी की वजह से रुकावट हो जाए तो एक जानवर यानी हदी, एक बकरी या गाय या ऊँट का सातवां हिस्सा जो भी मैसर हो जाए जिबा करके सर मुंडा लो और हलाल हो जाओ, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन हुदैबिया में कुर्बानियां जिबा करके करके वो हुए थे, किए थे उन्होंने इसी तरह से। और हुदैबिया हरम से बाहर भी है, और फिर वो आइंदा साल उन्होंने उसकी कज़ा भी पूरी की। 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा भी किया और उसकी जो उम्रे जो उनका छूट गया था उसकी कज़ा भी की, जो 6 हिजरी वाला वाकया हुआ था हुदैबिया के मकाम पर। व अतिमुल हज्जा, तो इसका ताल्लुक हालत अमन से है, यानी अमन की हालत में जब इंसान आ जाए और उसका उस वक्त सर ना मुड़वाए और एहराम खोलकर हलाल ना हो जाए, जब तक तमाम मनासिक हज पूरे ना कर ले। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, हाँ अगर तुम रोक लिए जाओ और जो कुर्बानी मैसर हो जाए उसे कर डालो और अपने सरों को ना मुंडवाओ। सरों को जब एहराम बांध लेता है इंसान, नियत कर लेता है, एहराम की नियत कर लेता है, तो सरों को मुंडवाना नहीं है जब तक कि कुर्बानी कुर्बान गाह ना पहुंचे। यानी कि हज के रुक्न में से एक रुक्न यही है कि इंसान कुर्बानी करवाता है ना, जो ईद उल अधा का दिन होता है तो एक हाजी जो होता है वहां पे कुर्बानी कराता है। जब कुर्बानी कुर्बान का यानी कि कुर्बान हो जाए तब वो अपने सर मुड़ा सकता है, बाल मुड़ा सकता है। अलबत्ता तुम में से, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बता दी गई, अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ है। लेकिन बीमारी की तकलीफ या सर में कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी हो गई, किसी की चोट लग गई, किसी के जख्म हो गया, कोई गिर गया, सर फट गया, तो फिर क्या है, ऐसी परेशानी में, ऐसी मुश्किलात में फिर तुम क्या करो, सर मुंडवा भी सकते हो। अलबत्ता तुम में से जो बीमार है या उसके सर में कोई तकलीफ हो गई जिसकी वजह से सर मुंडवा ले, तो इसमें क्या करना है, फिदिया देना है। फिदिया दिया जाएगा, ख्वाह वो रोजे रख ले, ख्वाह वो सदका दे दे, ख्वाह वो कुर्बानी कर ले। ठीक है, यानी उसको ऐसी तकलीफ हो जाए कि सर के बाल मुंडवाने पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फिदिया जरूरी है। हदीस की रूह से भी ऐसे ही होता है, यानी कि हदीसों से भी पता चलता है कि बहुत सारे, एक शख्स था जिसको सर मुंडवाना पड़ गया, उसके सर में बहुत सारी जुएं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है इसका सर मुंडवा दो। तो एहराम की हालत में सर मुंडवाना जायज नहीं होता, लेकिन अगर किसी शख्स को बीमारी या तकलीफ की वजह से सर मुंडवाना पड़ जाए तो उसको ये फिदिया देना होगा, जो यहाँ जिक्र हुआ है। हदीसों की रोशनी में इसकी तफसील ये है कि वो 3 रोजे रखे, इसका कफारा यही है कि वो 3 रोजे रखे जाए या 6 मिस्कीनों का सदका फित्र के बराबर सदका किया जाए या फिर एक बकरी की कुर्बानी की जाए। आयत देखें, बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तो करे और इसे जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डाले, जिसकी वो ताकत ना रखता हो तो फिर वो 3 दिन की रोजे रखे। 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी में रखें, ये पूरे 10 हो गए हैं। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। तो यहाँ पर ऊपर जो उस सूरत और कुर्बानी का हुक्म बयान हुआ है जो किसी शख्स को दुश्मन ने रोक दिया हो। अब ये बताया जा रहा है कि कुर्बानी अमन के आम हालात में भी वाजिब हो सकती है, जब कोई शख्स हज के साथ उम्रा भी जमा करे, यानी किरान या तमत्तो वाले हज का एहराम बांधे। अलबत्ता अगर कोई शख्स किरान या तमत्तो के बावजूद कुर्बानी की गुंजाइश व हिम्मत ना रखता हो तो वो कुर्बानी के बदले 10 रोजे रख सकता है, जिनमें से 3 रोजे अरफा के दिन यानी 9 तारीख तक पूरे हो जाने चाहिए और 7 रोजे हज से फारिग होने के बाद रखने होंगे। और यहाँ पे हज तमत्तो और हज किरान के बारे में बताया गया है, यानी हज तमत्तो या किरान के जरिए से हज और उम्रा दोनों को जमा करना सिर्फ उन लोगों के लिए जायज है जो बाहर से हज करने के लिए आए हैं। जो लोग हुदूद हरम में रहने वाले हैं तो उनके लिए क्या है, मीकात की हदों में रहते हुए वो सिर्फ इफराद कर सकते हैं, तमत्तो या किरान नहीं कर सकते हैं। तो हज की जो 3 किस्में होती हैं, हज तमत्तो है, हज जो है इफराद है और हज किरान है।
तो बाहर से जो दूसरी कंट्री से दूसरे शहरों से आने वाले जो लोग हैं वो हज इफरात, जो दूसरे देश और दूसरे कंट्री से आने वाले हैं वो हज तमत्तु या किरान कर सकते हैं, लेकिन जो वहीं के फर्द लोग रह रहे हैं, मक्का हरम शरीफ में ही रह रहे हैं, वो हज इफरात कर सकते हैं। आयत 197, अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्न अल हज फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाहु व तज़व्वदु फइन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने से, गुनाह करने से और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम में से जो नेकी करोगा उससे अल्लाह ताला बाखबर है। और अपने साथ सफर हज ले लिया करो। सबसे बेहतर तो शय अल्लाह का डर है, सबसे बेहतर तो जो ज़ादे राह है वो अल्लाह का डर है। और ए अक्लमंदो, मुझसे डरते रहा करो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज के बारे में बता रहे हैं कि हज ये कब होता है, किन महीनों में होता है, और ये है शवाल, जुल्कायदा, जुलहज के पहले 10 दिन। मतलब ये कि उम्रा तो साल भर में हर वक्त कर सकता है इंसान, जायज़ है, लेकिन हज सिर्फ मखसूस दिनों में ही होता है, इसलिए उसका एहराम हज के महीने के अलावा बांधना किसी और महीने में जायज़ नहीं है। तो मसला जैसे हज किरान या हज इफरात का एहराम अहले मक्का के अंदर ही से बांधेंगे। अलबत्ता हज तमत्तु की सूरत में उम्रे के एहराम के लिए हरम से बाहर हल में जाना उनके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जब तुमने हज के लिए एहराम पहन लिया है तो उस शख्स के लिए 3 काम तो उनसे ज़रूरी बचना ही बचना है। पहला ये है कि फिर वो अपनी बीवी से कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा, वला फसूका। और जो है यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा फला रफसा। फला रफसा, रफस यानी कि तुम्हें अपनी औरतों से ऐसी बात नहीं करनी है कि ना ही उनसे इशारतन बात करनी है एहराम की हालत में, ना उनसे मुबाशरत की बात करनी, ना मुबाशरत करना है, ना इशारतन भी कोई ऐसी बात कहनी है। वला फुसूका, और ना तुम्हें कोई गुनाह करना है, गुनाह से बचना है, लड़ाई झगड़े से और तमाम तरह के जो गुनाह है ना, लोगों को ताने तंज और झूठ और गीबत और चुगली, इन तमाम चीज़ों से तुम्हें बच जाना है। गुनाह में तो सारी चीज़ें आती हैं टोटली, कि झूठ, गीबत, लड़ाई झगड़ा, चोरी, और जो है एहराम की हालत में अक्सर लोग झूठ बोल देते हैं, गीबत कर देते हैं, और इधर की उधर की खानदान की पूरी सबकी बातें सुनते क्या हो जाता है, फिर गीबतें शुरू हो जाती हैं खवातीन की तो अक्सर। तो लेकिन खास करके हर बार तो बचना ही बचना है, खास करके एहराम की हालत में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हज अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो खास करके इन 3 चीज़ों से तो बचना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें गुनाहों से बचना है, वला जिदाला, और ना तुम्हें झगड़ा करना है, झगड़े लड़ाई से तुम्हें बच बच के चलना है। और अक्सर वहाँ इतना रश होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान झगड़ने लगता है, दूसरे लोग आके झगड़ने लगते हैं आपसे, तो उस वक्त क्या करना है, सब्र करना है, सब्र से अपने अरकान पूरे करते चले जाना है, क्योंकि हर जगह रश होता है। हज के टाइम पर वजू करने गए हैं तो रश है, लाइन लगी हुई लंबी सी, और अगर आप वॉशरूम गए हैं तो लाइन एक जो है ना लंबी सी लगी हुई है, तो आपको उस वक्त सब्र करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि खाइए पीजिए कम, हज के दिनों में 5 दिनों में पीना भी कम है, खाना भी कम है, इसीलिए ताकि इंसान वॉशरूम में ही लाइन लगाता खड़ा अपना टाइम ना लगा खत्म कर दे और अल्लाह का जिक्र और अस्कार में अपना वक्त गुजारे। और जो तुम नेकी करोगे, और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं वमा तफअलू मिन खैरिन, और जो तुम नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है, वतज़व्वदू, और तुम ज़्यादा राह ले लिया करो, ज़्यादा राह ले लिया करो। बेहतरीन ज़्यादा राह तो क्या है, तकवा है। तो बाज लोग हज को जाते वक्त ऐसे थे जो अपने साथ खाने पीने का सामान नहीं रखते थे। उनका कहना यह था कि हम अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करते हुए हज करेंगे, लेकिन जब रास्ते में खाने की जरूरत पड़ती तो बहुत सी बार वो लोगों से मांगने पर मजबूर हो जाते थे। तो आयते में बताया है अल्लाह तबारक तआला ने कि ठीक है कि तुम जो है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे वतज़व्वदू, और तुम ज्यादा राह ले लिया करो। लेकिन अब सारा का सारा दिमाग खाने पीने राशन गल्ले में ही ना चला जाए, तो बेहतरीन ज़्यादा राह तो क्या है, परहेजगारी है, बचना है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह से डर डर के चलना है, सारे काम करना है ना। तो एक तरफ दिमाग, अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है ज़्यादा राह ले लो, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा रश होता है कि अब वहां इंसान सोच रहा है कि अगर हम चले जाएंगे और हम मांग के और खा के और पी के काम चला लेंगे तो फिर क्या है, फिर मांगना अच्छा नहीं लगता है ना, कि इंसान है तो इस्तिताअत वाला, लेकिन वहां जाके क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो बेहतरीन अपना ज़्यादा राह ले लो, और सबसे अच्छा तो ज़्यादा राह है कि तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। अल्लाह के घर जा रहे हैं हज उम्रा करने, और अपना ज़्यादा राह ले लिया करें। अगर कोई इंसान पैकेज से जा रहा है तो पैकेज में तो ये सारी कुछ अवेलेबल होती, फैसिलिटीज होती, लेकिन जब गवर्नमेंट वाला जब जाता है या खुद से जब इंसान जाता है टिकट करके और फिर अपना खुद से होटल उसने जो है बुक किया होता है, तब फिर इंसान क्या करे, अपने साथ खाने पीने का सामान वगैरह लेके जाए, और जो है ना दूसरों से वहां मांगता ना रहे।
वहाँ पे आप देखिए कि हर चीज़ अल्लाह की नियामतें बिखरी पड़ी हैं। तो इस कदर वहाँ पे चीज़ें बँटती हैं, तो सारा दिमाग इंसान का खजूर बँट रही है तो चलो हम ले लें, या बिरयानी बँट रही है तो हम ले लें, चाहे जूस बँट रहा है तो हम ले लें, वहाँ लंबी सी कतार में लग गए। अब करने तो आए थे अल्लाह के घर का तवाफ़, उम्रा और हज, और वहाँ जाके इंसान का दिमाग भटक जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचें और ज़रूरत के तहत ही लें, और फिर क्या करें, अपना दिमाग, अपना जो ध्यान है, अपना मन है, अल्लाह की इबादत में लगाएँ। इन तमाम चीज़ों से बचें। और बेहतरीन ज़्यादा तो क्या है, परहेज़गारी, साथ में अल्लाह की परहेज़गारी भी लेके जाना, कि तुम्हें ना ये परहेज़गारी और अल्लाह का डर इन तमाम चीज़ों से बचाएगा। जब तुम्हें अल्लाह से डर होगा तो तुम फुसूक करोगे, ना तुम जिदाल करोगे, और ना तुम जो है लोगों से माँगते फिरोगे, और ना तुम रफ़ा करोगे ना। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और मुझी से डरो ए अक्ल वालों। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मुझसे ही तुम डरो, मेरा ही तुम्हें जो है ना डर इख्तियार करना है, और अक्ल वालों। आयत 198। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम फइज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ाति फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लि लमिन अद्दल्लीन। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं है। जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम उससे पहले राह भूले हुए थे। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम, कि तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। यहाँ इससे ये मुराद है, फजल से मुराद तिजारत और कारोबार भी, यानी सफर हज में इंसान अगर तिजारत कर ले या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर ले, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी नीयत क्या होनी चाहिए, हज की। हज की राह में जब इंसान निकला है तो थोड़ा मोड़ा इंसान क्या करे, बिजनेस तिजारत कर सकता है, फजल तलाश करता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। लेकिन उसकी नीयत क्या हो, कि एक इंस्ट्रक्ट की नीयत ही यही है कि बिजनेस हम करने जा रहे हैं, चलो हज कर लेते हैं, तो फिर ये चीज उसमें क्या है, जो है सही नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे, जब तुम अरफात से लौटो और मशअरिल हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसा उसने तुम्हें हिदायत दी, यानी कि जब तुम अरफात से मुजदलफा आओ, मशअरिल हराम यानी मुजदलफा एक एरिया, एक जगह होती है जहाँ पे रात भर ठहरा जाता है। 9 तारीख को, हज की 9 तारीख को अरफात के मैदान में ठहरा जाता है, और रात जब होती है तो मुजदलफा मशअरिल हराम के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन सब जगहों पर अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है, जिसने यानी कि तुमको हिदायत दी ना, अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। लेकिन इसकी बरकत से वो लोग मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, अपनी देवी देवताओं के नाम लेते थे। आयत 199। सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफादन नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर तुम उस जगह से लौटो जहाँ जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। कुरैश के लोग अरफात तक नहीं जाते थे, वो कहते थे कि हम आला खानदान हैं, और मुजदलफा से वापस वो लौट आते थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जहां से सब लौटते हैं ना, वहां से लौटो, और अल्लाह का अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहा करो, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। तो इसमें जो तरतीब के मुताबिक अरफात जाना और वहाँ पे वकूफ़ करके वापस आना ज़रूरी है, यानी कि हज के रुक्न में से एक रुक्न यही है कि जितने भी हाजी हैं पहले तो सब मीना जाते हैं, मीना से फिर सब लोग को अरफात जाना होता है 9 ज़िलहज्जा को। फिर वहाँ दिन भर ठहर करके वापस मुज़दलिफ़ा आना ज़रूरी है। लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है, इसलिए कुरैश यानी कि मक्का के जो कुरैश थे, अरफात तक नहीं जाते थे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुज़दलिफ़ा से ही लौट आते थे। चुनांचे ये हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर आते हैं ना, वहीं से लौटकर तुम्हें भी आना ज़रूरी है, यानी अरफात से लौटना तुम्हें ज़रूरी है। तो एक हाजी जो होता है सीधे अरफात जाता है 9 ज़िलहज्जा को, फिर वो रात में मुज़दलिफ़ा आता है, फिर वहाँ से लौटकर फिर वो मीना और वो जो है जमरात में जहाँ पे शैतीन को कंकड़ लगाए जाते हैं वहाँ पर आता है। आयत 200। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह तुमने अपने बाप दादाओं का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो कुछ लोग थे, अरब के लोग थे, जो फरागत के बाद मीना में मेला लगाते थे और आबा व अजदाद के कारनामों का जिक्र करते थे, और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि जब तुम 10 ज़ुल्हज्जा को कंकरियां मारने और कुर्बानी करने और सर मुंडाने और तवाफ़ काबा और सई और सफ़ा मरवा से फारिग हो जाओ, तो उसके बाद जो 3 दिन मीना में क़याम करना है ना, वहाँ खूब अल्लाह का जिक्र करना है, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना है। और जैसे ज़माने जाहिलियत में वो अपने आबा व अजदाद का तज़किरा करते थे ना, ये सब काम नहीं करना है। तो ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से पहले अरब वालों ने ये तरीका मुकर्रर कर रखा था कि तमाम इंसान 9 ज़िलहज्जा को अरफात के मैदान में वक़ूफ़ करते थे, यानी कि ठहरते थे, मगर कुरैश और कुछ दूसरे कबीले जो हरम के करीब रहते थे और हुम्स कहलाते थे, अरफात जाने की बजाय मुज़दलिफ़ा में रहते थे, वहीं वो ठहरते थे। और उनका कहना ये भी था कि हम हरम के मुज़ाविर हैं और अरफात चूँकि हमारी हरम की सीमाओं से बाहर है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएँगे। नतीजा ये हुआ कि आम लोगों को भी 9वीं तारीख का दिन अरफात में गुज़ारने के बाद रात को मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना पड़ता था, मगर कुरैश वग़ैरह शुरू से ही मुज़दलिफ़ा में होते थे।
ان کو رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا اور جو ہے ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا. اس آیت نے یہ رسم کو بھی ختم کر دیا. اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ذکر کرو اللہ کا، تو اس درمیان وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے زبان جاہلیت کا جو طریقہ تھا وہ کرتے تھے. یعنی کہ وہ دعائیں تو کرتے تھے، صرف اور صرف دعائیں اللہ سے یہی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دنیا میں دے دے. تو حج سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تھے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرنے اور ان کے کارنامے کو بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے. یہاں اشارہ اس رسم کی طرف ہے. اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے تھے، مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے نا، ان کے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ آخرت ہوگی، تو اس لیے ان کی دعائیں صرف اور صرف دنیا کی بہتری اور دنیا ہی کی ساری دنیا ہی سے ریلیٹڈ ان کی دعائیں ہوتی تھی. لیکن ایک جو مومن ہے وہ دعائیں کس طرح سے مانگتا ہے ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.